Hello everyone. So I don't know how many of you who see my videos are also following another teacher who is really fighting for the case. And in this case, this is Sagar sir from Nashik ELC. So he just posted a video कुछ टाइम पहले in which he pointed out that he had a Google form release जिसमें स्टूडेंट्स ने बोला that कितना परसेंटाइज आया कौन से स्लॉट में थे. So I realized that okay, that's a nice thing to do because I had even done the same thing. वो फॉर्म मैंने किया था. That was data for myself, but I want to show that data to you guys also because that brings in the true fact that there is no transparency in the result and that the result is for sure extremely skewed. Chal. Now, and why do I say this? A few pointers before this video even starts or before we even show you the data. Guys, Sagar sir had a data set of 1035. I have a data set of around 893 students. Yeah, 893. So, is this a representative of the entire data? No, 1 lakh student देते हैं. This is not a representative. But the point is that देखो जो स्टूडेंट ने पढ़ाई की है ना, जो स्टूडेंट सीरियस है वही वो फॉर्म भरेगा. द स्टूडेंट्स हु आर नॉट सीरियस, जो टाइम पास करने बैठे हैं, जो जिन्होंने खुद पढ़ाई नहीं की थी, they are not the people who will fill the form. Also, the people, we both have a limited reach. We can't reach out to 1 lakh students. The people who have a huge reach, they are not helping us, and that's a very sad thing, but that is a different case altogether. But at this point, we have a limited reach, and in that reach also, I can assure you that we have a good concentration of students who are very serious, who follow us. Historically, the results and everything will speak that. Okay. So, like for example, if you even see that JV का सारा crowd, it is मुझे सागर सर को जानता ही है because they are serious about preparation and most serious लोग हमें follow कर रहे हैं. So this is a small but a very good high quality sample set. Okay. So keeping this in mind, let's start the video and I'll explain you that कैसे क्या चल रहा है, why are things skewed and how it should not have been. चल. I hope my screen is visible. So guys, यहाँ पे क्या हुआ है? If you look at this, around 892, not 893, 892 people had filled it. जिसमें से if you realize I was in slot 2 इसलिए मैंने वहां पे स्टार डाला है. Most of the people who filled it were slot 5. Again the same logic. I'm not saying that slot 5 में ज्यादा लोग थे कम लोग थे, जितने भी लोग थे, but most people who filled the form were of slot 5. Again my point is slot 5 वही लोग एक्चुअली रिटेस्ट देने गए थे जो लोग एक्चुअली पढ़ाई के बारे में सीरियस थे. आई नो मेनी स्टूडेंट जो इतने सीरियस नहीं थे वो रिटेस्ट देने नहीं गए. तो दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम सेइंग कि इसमें सिर्फ स्मार्ट लोग हैं, बट इसमें ज्यादातर स्मार्ट लोग हैं. वो लोग हैं जो पढ़ाई के बारे में बहुत सीरियस है, वही लोगों ने ये फॉर्म भरा है और ये उनका ही डेटा है. I personally have students who have last year scored 99 percentile plus और इस बार उनका परसेंटाइल आया है 36, 38, 42. ये इम्पॉसिबल है. आई कैन गारंटी दैट वो स्टूडेंट्स अगर आंख बंद करके भी एग्जाम देंगे ना, उनको इससे तो ज्यादा परसेंटाइल आ ही जाएगा. जस्ट या उनको इससे तो ज्यादा परसेंटाइल आ ही जाएगा. दिस इज समथिंग दैट इज अ गिवन, अ सेड थिंग. If you look at this data, guys, पूरे 892 people who are serious, studious people, उनमें से सिर्फ दो लोगों को 99.95 प्लस परसेंटाइल है. जेबी जाने लायक सिर्फ दो लोग हैं. नोबडी एल्स. स्लॉट 1 में से ऐसा कोई नहीं है जो फॉलो कर रहा है मुझे या जिसने सागर सर को follow, जिसमें आया है लोगों को परसेंटाइल. स्लॉट 3 में नहीं है, स्लॉट 5 में मुझे तो कोई नहीं आया. दिस इज रियली प्रॉब्लमेटिक. 99.90 प्लस, यहाँ पे चार लोग हैं. सिर्फ चार लोगों को आया है. नाउ इफ यू रियलाइज आउट ऑफ 892 सेट ऑफ रियली सीरियस स्टूडेंट्स which also include a lot of my students who I was expecting to go into JB who are regularly scoring 150, 155, 160 in mock tests. सिर्फ छह लोगों को आया है इतने परसेंटाइल्स, which is very problematic and which should not be happening. In that also, if you again see slot 1, slot 3 में मुझे कोई नहीं दिख रहा. Slot 5, the data of slot 5 is triple of slot 3, is triple of slot 4, is triple of slot 2, ऑलमोस्ट डबल ऑफ स्लॉट 2. ये देखोगे यहाँ पे एक है, यहाँ पे 5 टाइम्स अप्रोक्स या 5 टाइम्स है अप्रोक्सीमेटली. 5 टाइम्स में फिर भी इधर एक ही स्टूडेंट है. प्लीज लेट मी रिमाइंड यू अगेन दैट दिस इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर बिकॉज एंटायर में बहुत सारे ना पढ़ने वाले लोग हैं 1 लाख में. इसमें सिर्फ अच्छे पढ़ने वाले लोग ज्यादा है. दिस इज अ वेरी स्क्यूड डेटा सेट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी स्टूडेंट्स. अगर हाई क्वालिटी स्टूडेंट्स में से लोगों को 99.90 भी नहीं आया है, then there is a serious issue that you must be looking at. 99.80. Now 99.80 is the point where you want to be because इतने पे सिडनम खत्म होता है. 80 के थोड़ा ऊपर सिडनम क्लोजेस.
तो सिडनम जाने वाले अगर हम टोटल लोग गिने, व्हाट इज दिस, 9 people. And when I say 2 people, these are not cumulative numbers. मतलब 99.90 से 99.95 तक 4 लोग हैं, 99.80 से 99.90 तक 9 people are there. These are not cumulative, these are individual sets. वो उस हिसाब से मैंने स्ट्रैटिफिकेशन किया है इसका, जस्ट अ क्लैरिफिकेशन. So 99.80 there is an issue, again very less people. अंडरस्टैंड 99.80 लाने वाले लोग कितने होते हैं, 200. अगर हम 1 लाख की एग्जाम पकड़े, देन 0.10%, 1 परसेंटाइल पीपल, 99 परसेंटाइल इज बेसिकली 1000 पीपल. तो 1000 तो 0.10 परसेंटाइल विल बी 10 people, 100 people. 99.80 परसेंटाइल इज 200 people. 200 में से सिर्फ 9 लोगों ने फॉर्म भरा है. आई फाइंड इट वेरी टफ टू बिलीव दैट 200 में से सिर्फ 9 लोग ही देख रहे हैं वीडियो, तो वो लोग फॉर्म भर रहे हैं, मेरा या फिर सागर सर का. इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर एंड वेरी अनबिलीवेबल एज पर माई एक्सपीरियंस इन द लास्ट 2 or 3 years of my teaching. The same with 99.60 से 99.80 वाला. It's overall very less. If you even look at it, जहाँ पे 1000 का सेट हमने छोटा किया है, तो डिवाइड बाय 100 तो होना चाहिए. अगर मैं बोलूँ ये अप्रोक्सीमेटली 100 है, तो 1 लाख के डिवाइड बाय 100 हुए 99. बहुत कम लोग आए हैं. दैट आई एम सीइंग 31 इज अ वेरी स्मॉल नंबर आउट ऑफ अ स्टूडियस क्राउड. That should not be happening. My assumption here, now what is my assumption? Now I'll tell you also from what conversation we had with the commissioner of MBA CET, commissioner of the state CET said. We asked them for names of the people. We asked them कि सर 100 percentiles कहाँ है, आप हमें ऐसा है, अगर है 5 तो हमें नाम दे दीजिए. He was claiming that also there was a newspaper article in the Times of India where it was claimed that there are 100 percentiles, इनको भरोसा नहीं है हम पे, we will release it. We asked them कि सर अगर 100 percentiles है तो आप हमें पांचों के नाम दे दीजिए, 5 होने चाहिए. He agreed that 5 slots के हिसाब से कैलकुलेट किया है. He said, we asked that सर आपके पास तो पीसी में सारे रिजल्ट्स पड़े हैं, आपके लिए बस 2-3 क्लिक्स का काम है, आप सिर्फ पांचों के नाम हमें दे दीजिए, दैट कौन है, हमें पता चले दैट 5 100 percentiles है. अगर 5 100 percentiles होते तो बाय डिफॉल्ट पूरा आर्ग्यूमेंट कैंसिल हो जाता था. But they were not enough, not even giving us the names or even showing us who the 500 percentilers were. नाम भी नहीं जानना है, बस दिखा दो कि 5 लोग हैं, बट वो लोग वो नहीं कर रहे थे, because there is clearly discrepancy in the percentiles. What I believe has happened this time is that उन्होंने बहुत सारे percentiles बीच में शायद skip कर दिए है, फॉर्मूला में कुछ गलती हुआ है, कैलकुलेशन एरर हुआ है, and which is not. देखो guys, ये percentile calculation is not a very difficult thing. आईबीपीएस एक जमाने में 1 हफ्ते में रिजल्ट निकालता था. इन 1 वीक सीईटी रिजल्ट यूज्ड टू बी आउट, एंड ट्रस्ट मी इट इज नॉट डिफिकल्ट टू असेस 1 लाख स्टूडेंट्स. इवन एक दिन का टाइम इनफ हो जाता है अगर तुम्हारे पास एक अच्छा कंप्यूटर और एक अच्छा टेक्निकल पर्सन है. तो अगर कोई भी एक डेटा वाला पर्सन है, दैट कैन बी डन. डिस्क्रिपेंसी वो सब हटाने के लिए पाइथन कैन बी यूज्ड. इन लोगों को लिटरली 25 या 30 हजार की नौकरी में भी लोग मिल जाएंगे जो ये कर देंगे. सो दिस इज क्लियरली अ केस ऑफ इफ नॉट चीटिंग बट नेग्लिजेंस. तो अगर ये चीटिंग नहीं है तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, उन्होंने मजाक किया है और उन्होंने गलत तरीके से काम किया है, उन्होंने काम सही तरीके से नहीं किया है. और अगर वो नहीं, देन आई डोंट वांट टू बिलीव दैट दे हैव ट्राइड टू चीट द स्टूडेंट्स. आई जस्ट वांट टू बिलीव दैट उन्होंने गलती की है. तो वी रियली अर्ज द सीईटी सेल कि प्लीज ये गलती हुई है, गलती सुधार दो. द ओनली वे टू सॉल्व दिस मिस्टेक इज जस्ट release the raw scores along with the response sheet. Guys, I am again asking you, I really need your support. We are planning on file. We are planning on talking to the education ministry. We are planning on doing a court case if things don't work out well. I just really want you guys to support us. We are putting in all the effort for you guys without even a guarantee that हम जीतेंगे या हारेंगे या फिर हमारा क्या होगा. We are really putting in the effort and I am strongly of the opinion that इसके लिए we should be getting justice. There are people on YouTube who are really making fun of the people जो actually effort डाल रहे हैं. लोग गलत सलत बोल रहे हैं. There are people whom I have heard जो students को भड़का रहे हैं that अरे ये केस करने वाले तो पागल है, केस करके कुछ फायदा नहीं होता है, सालों से केस हो रहा है. सालों से केस हो रहा था, बट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट रीटेस्ट हुई ना, बिकॉज स्टूडेंट्स केस जीते, बिकॉज सपोर्ट था. सो आई एम प्रीटी श्योर इफ वी गेट द सपोर्ट देन थिंग्स आर पॉसिबल. इट्स जस्ट दैट हमें अड़े रहना पड़ेगा, हमें उन्हें याद करवाना पड़ेगा दैट स्टूडेंट्स आर नॉट वीक एंड दे कैन नॉट टेक अस एज अ जोक. सो गाइस, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू गाइस. सीईटी अब थोड़ा हम सुधार देते हैं, अगर वो नहीं सुधार रहे तो लेट्स ourselves put in an effort to improve CET, because otherwise MBA CET
तुम्हारे सालों की मेहनत JBIMS एंड सिमसरी, ये चारों पानी में मिल जाएंगे, एंड आई डोंट रियली वांट दैट. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, एंड कुछ भी अगर तुम्हें बोलना है तो द कमेंट सेक्शन इज ओपन. बाय एवरीवन.